a very interesting session on children. But I think that it would have been little tedious, so we thought of going with our combination session from next 15th, from the coming 15th rather. So I would like to conclude that emotional coaching in kids, part 3. So that will be a sort of conclusion, but that's not an end of how emotionally coached the kids should be and how parents should themselves be emotionally coached. It's a very briefest way that I'm going to conclude, and with a lot of discussion from Dada. So he helped me out in chalking out some 10 questions for both the factors, which I will be discussing it in the end. And for that matter, I would need everyone's help, like you will have to keep a paper and a pencil and just say yes and no. So that will be a test for you and me both. Because when Dada took this test, जब मेरा उन्होंने ये test लिया था of questionnaire of 10 questions like, so I actually failed in both the sets. But that's how I learned my emotional coaching from him. That's how we have to learn. So उन्होंने बहुत सिंपल सा एक टेस्ट सीरीज बनाई भी है, वो हम आखिरी में करेंगे. So let's start with this conclusion of emotional coaching in kids. But let me start by saying that and rather acknowledging that I no longer have small kids. मेरे बच्चे अब छोटे नहीं हैं. I have well crossed past that stage some 2 decades ago, and now ये जो चीज बोलते हैं ना generation gap, it has doubled. When I was having the small kids and when I'm not having the small kids, like it's the gap of 2 decades, and I see a huge generational gap. rather मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ancient हो गई हूँ. There has been so much vast changes in how to raise a child. But एक basic जो चीज होती है to emotionally bond with your child never changes. Whether your kids have grown up, या आप दादा दादी नाना नानी बन गए हो, या आप नए पेरेंट हो, या आप पेरेंट हो जिनके बच्चे 20 साल के हैं, those few things of coaching emotionally strong kids never changes. So, but I would say that whatever I say, take it with a pinch of salt and rely more on your judgment. You are the best doctor, you are the best therapist for your child. As far as very small children are concerned, like age from 1 to 7, I strongly believe that experts are hazard to your health. They are hazard to your children's health. You are the best doctor, best therapist for your own child. This I'm repeating again. Why? Because we as doctors, we as therapists, we as like anything we say on videos or the books, only helpful if whatever we are saying is taking you closer to your own heart's judgment in raising your children. Then it is helpful. Otherwise, please go on your gut feeling as far as raising your own children is concerned. Now, a very beautiful thing which John Gottman has said, and rather Dada keeps on repeating this on and off. जब भी हमारे patients होते हैं जिनके बहुत छोटे बच्चे होते हैं, so we keep on repeating the same thing, and which I'm going to say it again. Children grow and develop the way they do largely as a result of how and what and why we are speaking to them, or whatever we are saying to them. We are hypnotizing our children into disliking them. Trust me, we are actually, I'm repeating, we are actually hypnotizing our children into disliking their own self due to our overwrought, जिसे कहना चाहिए ना, unhappy emotions. जो हमारे emotions होते हैं, जितने भी वेरियस हमारे इमोशंस है, फ्रस्ट्रेशन वाले हैं, एंगर वाले हैं, या जो भी हैं, जो कि ज्यादा हैं ऑफ कंपेयर टू द हैप्पी वंस, दे आर मोर बिकॉज वी आर सो प्री ऑक्यूपाइड, वी आर सो ऑक्यूपाइड विद न्यूमरस ऑफ थिंग्स ईच एंड एवरी डे दैट वी हैव टू गो थ्रू. That affects the behavior of a child. Our attitude affects the behavior of a child. And let me tell you that every adult in 5 adults will either need a psychiatric help, they need a therapist, they need medication to relax, or they are in the unhappy marriage.
Trust while children are watching you, and it affects them very strongly. They fear your behavior. जब घर में माता पिता लड़ते हैं या जब मम्मी में बहुत कुछ हम लोग कई बार बोल जाते हैं, हमें बोलना होता है उनके बिहेवियर की, गुस्सा हो रही है जो भी हो, हम उनके कैरेक्टर से चले जाते हैं कि तुम इतने आलसी हो, तुम इतने गंदे तरीके से रहते हो, तुमने अक्ल नहीं है. ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हम कभी गुस्से में बोल देते हैं, ट्रस्ट मी, seeps insecurity in them, it seeps fear in them. So please mind your language, please mind your tone, please mind your expression. They are watching you every day. Parenting is not a job, it's not a part-time job, it's a 20-year job. अगर आपने तो समझ जाइए, एक बार को तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बाहर की जॉब चेंज कर सकते हैं, ये जॉब आपको चेंज करना अलाउड नहीं है. You have to give your 20 years, 24/7, watching your moves, watching your words, watching your behavior pattern. आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने बड़ों के साथ कैसे डील कर रहे हैं. Kids are watching your every movement, and whatever unhappy you are doing. मैडम किसके मोबाइल से आवाजें आ रही है, देखो जरा. दादा हाँ, मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ. This is so bad. Guys, kindly mute yourself. Right. So all that behavior pattern जो भी वो बच्चे देखते हैं, they fear those things, and further they suppress their own feelings and their own emotions. अब suppression क्या होगा? Which will seep out in the failing of academics, which will seep out in their behavioral issues, which will seep out in their physical issues like asthma, cold, cough, frequent fever आना, frequent cold आना, skin problems आना. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इमोशंस पे डिपेंड करती हैं. राइट नाउ वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड because of the emotional imbalances, जो भी pathological conditions होती है, we will not go into that because that session I have exclusively kept for Dada, and from his experience of dealing with 1,000 children, so he has made a whole section of कौन सी रेमेडी का कौन सा बच्चा कैसा होता है. So that session we will go further. We will conclude this session today that kids experience due to emotional imbalances के साथ हम क्या कर सकते हैं as a parent. We will conclude that today. So ये चीज एक बहुत सुंदर सी चीज थी. As this happens, ये जो emotional imbalance होता रहता है, we too have inherited. हमने भी inherit किया है. It is like a tradition. क्योंकि हम जब छोटे थे ना, तो देयर वाज अ जनरेशन गैप, वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक. वो होता था कि बहस मत करो, राइट. देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ डिस्कशन. जब मम्मी पापा को कोई चीज समझ में नहीं आती थी, बहस मत करो, बड़ों के सामने बोलो मत. सो ट्रेडिशनली वी दैट थिंग इज सीप्ड इनटू अस एंड वी हैव इनहेरिटेड दैट. कई जगह पे हम वो चीज करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ. और कहाँ करना चाहते हैं? Where we understand that children are smaller, they are less rational, they are less experienced, and they are less powerful. We are more powerful. जहाँ हमें चुप करना होता है, जो चीजें हमने inherit की हैं अपने पेरेंट्स से, वही चीज हम रिपीट भी करना चाहते हैं कई बार. And those things our kids are taking, right? And sometimes वो हमसे मतलब छुप के कुछ काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वो हमारे से ज्यादा खुल के बात नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि अभी डांट पड़ जाएगी या अभी बोल दिया जाएगा. तो कई बार होता है कुछ बच्चे गलत करके आते हैं, हमारे मुंह से अनानास निकल जाता है, मैंने कहा था पहले ऐसा होगा. यू नो दैट इज समथिंग दे ऑलवेज फियर. उनको पता है कि आप ये बोलने वाले हो, उनको ये भी पता है उन्होंने गलती कर दी. सो दिस इज अ वेरी दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप दैट दे आर बीइंग स्ट्रांग, दैट दे आर बीइंग ब्रेव in accepting their own mistake. और फिर हम उससे ऊपर ये भी कह दें कि कहा था मैंने ये चीज. So that's a wrong attitude. अगर if they are being brave in accepting their wrongdoings, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमें कि भाई बड़े होंगे तो गलतियां करके ही, गलतियों से सीख के ही बड़े होंगे. So there we have to be empathizing with them. There we have to bring them closer to us rather than pushing them away. So taking children's emotions seriously requires lot of empathy.
requires lot of keen listening skills and a willingness to see things from their perspective, from their inexperienced perspective, rather than मैंने कहा था, rather than from our own experience, right? And this all things require less of selfishness. Certain selfishness हमें कम करनी पड़ेगी. We have to be selfless in raising our kids. ये जो चीजें होती ना, हम तो ऐसे करते थे अपने जमाने में, हम कभी अपने मम्मी पापा के सामने जवाब नहीं देते थे और हमने कभी ऐसा नहीं किया जैसा तुम करते हो. सो टाइम्स हैव चेंज्ड. सो आप अपनी मत गाइए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया. आपने भी मिस्टेक्स बहुत किए. सो डू नॉट हाइड दैट. सो डू नॉट बी सेल्फिश बाय सेइंग दैट यू वर सो गुड एंड दे आर नॉट. You are putting them into insecure zone. So don't do that. Now I'll tell you something, a beautiful thing. जो एक दादा ने हमें क्वेश्चनर्स के लिए like he had prepared me. So let's begin by self-examining. It's a sort of self-test which will help you evaluate your own style of parenting. Every person has got their own style of parenting because they have themselves been raised in certain ways. मेरे मम्मी पापा अलग थे आपके मम्मी पापा से, दादा के पेरेंट अलग थे उनसे, but there is a generation gap also. So we all have been raised in different environment. We all have been raised by different set of parents. But how you are raising, you have to ask few questions to yourself. So there are set of 10 questions. If quickly you can write yes and no, I will go very slowly. बट एक पेपर पेंसिल लीजिए, या इफ यू डू नॉट हैव पेपर पेंसिल राइट नाउ इन योर हैंड, सिर्फ आप दिमाग में यस और नो लिखिए और बाद में मुझे सिर्फ बताइएगा कि 7 टाइम्स यस आया या 3 टाइम्स नो आया या 3 टाइम्स यस आया, 7 टाइम्स नो आया. सो लेट मी स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन एक्टिंग सैड और एंग्री और sulky and this they are doing in trying to get adults attention. I will repeat the question. हिंदी में भी मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ कि बच्चे गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं, सल्की होते हैं. कई बार हम बोलते हैं कि अटेंशन पाना चाहते हैं हमारा. So what do you say? It is right or wrong? You just have to write true or false. So the second question comes, a child's anger or sadness deserves a time out. Sadness doesn't require a time out, but sadness होती है तो हम अपना टाइम आउट भूल जाते हैं, हम खुद जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं. बट हियर आई एम आस्किंग, बच्चा अगर गुस्सा होता है तो टाइम आउट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? राइट? अगेन ट्रू एंड फॉल्स, यू हैव टू चूज. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन योर चाइल्ड इज एक्टिंग सैड और एंग्री, यू टर्म इट देम एज अ ब्रैट. जब गुस्सा होता है, बहुत सारा गुस्सा होता है बच्चा, या अक्सर गुस्सा होता है, तब आसपास वाले लोग सबसे पहले कहते हैं बहुत बदतमीज बच्चा है, बहुत ब्रैट है. तो पेरेंट्स आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट उसको दबाने की कोशिश करते हैं. राइट नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ अ चाइल्ड इज एंग्री, इफ अ चाइल्ड स्टेज एंग्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, डू यू से द चाइल्ड इज अ ब्रैट, yes or no? My next question is, anger usually means aggression. आपको क्या लगता है, एंग्री बच्चे अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, चिल्ड्रन गेट सैड और एंग्री टू गेट देयर वे. अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या नॉट एग्जैक्टली, आई एम वेरी नॉट वेरी गुड इन हिंदी, बट आई विल जस्ट से कि चिल्ड्रन गेट सैड और एंग्री टू गेट देयर वे. जो चीज उनको चाहिए तब वो ज्यादा गुस्सा करते हैं या सल्की ऐसे करके बैठ जाते हैं, मैं नहीं करूंगा, आपने मेरे लिए ये नहीं किया. You know that kind of children. So write true or false. Next question, question number 6. Do you set limits on child's anger? Time out अलग चीज है, एक लिमिट आप सेट कर देते हैं बच्चे के लिए. एक बोलते हैं ना कि ये आपके लिए ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो आप एक सेट कर देते लिमिट कि ये होगा तो ये नहीं करोगे तुम, तो मैं ये ऐसा करूंगा. इज दैट व्हाट यू डू विथ योर चाइल्ड? राइट yes or no? Or what matters to you is time out. Question number 7. My child has a bad temper and I worry about it. It can be for the sadness also. अगर आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है या बहुत ज्यादा सैड रहता है, तो ये क्या चिंता का विषय है आपके लिए? yes या no?
Next question. Child expressing anger amounts to temper tantrums. कितना ज्यादा बच्चा गुस्सा करता है और कितना ज्यादा टेंट्रम थ्रो करता है? एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, आपको समझा दूं उसके लिए ये लाइन किसके लिए है। मेरा बच्चा जब छोटा था तो अक्सर मॉल के अंदर फैल जाता था, भीड़ के बीच में वो फैल जाता था, चिल्ला चिल्ला के पैर पसारता था। तो ये आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, या आप उसको चुप कराते हो, या आप उसको बोलते हो कि दांत पीस के बोलते हो कि ये क्या तरीका है बिहेव करने का? ट्रू और फॉल्स? टेंट्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन. एंग्री चिल्ड्रन आर डिसरेस्पेक्टफुल. आपको ऐसा लगता है जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, नीचे कई बार आप खेल कूद में चिल्ड्रंस पार्क में देखते हैं कुछ बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं. आर दे डिसरिस्पेक्टफुल? डू यू कंसिडर देम डिसरिस्पेक्टफुल? यस और नो? लास्ट क्वेश्चन. Most children tend to cloud my own control. Okay, this is yes for everyone. Nobody can refuse no to this question. I will repeat the question again. When children tend to be very angry or very sad, ये मेरे साथ हो चुका है, they cloud your judgment and you become so judgmental and you speak so much that later you regret कि आपने क्या बोला. Does that happen with you? That happened with me all the time. So you have to write very truthfully because we are not judging you over here. Right? So quickly आप लोग फटाफट से मैसेज में डाल सकते हैं. But let me tell you, I am not judging any one of you over here. But जिसके भी 7 और 8 आ गए, trust me, मेरे तो 8 थे. So you are way beyond disapproving from emotional coaching as a parent, right? This is not a right way of parenting. We need to learn to be emotionally coached first so that we can teach our kids emotional coaching. So this set of 10 questions are disapproving if you say yes. It doesn't matter 8 times or 9 times or even 10 times. I accept कि मेरे इसमें से 8 में से ये 8 में यस थे एंड आई फेल्ड द टेस्ट वेरी बैडली. बहुत पुरानी बात है. फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे छोटे थे तब काफी कुछ दादा ने मुझे सिखा दिया था. बट दिस इज फॉर यू, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच कोचिंग वी एज पेरेंट्स नीड बिफोर वी कैन teach emotional coaching to our kids to become little stronger and to handle their own emotions in their later stages of life. Right. Next set of 9 questions or 8 questions are again there. Please listen very carefully. ये questions जो दादा ने बनाए थे ये बहुत beautiful questions हैं और इसका भी आंसर आप yes और no में दीजिए. But you will wonder कि ये questions उन्होंने क्यों पूछे होंगे. So the first question comes your way. When my child is sad or angry, when my child is sad or angry, is it time to get close or not close to the child? जब बच्चा बहुत गुस्से में या बहुत सैड है, do you want to get close to your child or not? Second question comes your way. When your child is sad or angry, is it a time to solve the problem of the child or not? Yes or no? ये सारे के सारे yes ही हैं. Let me tell you, क्योंकि जो हम ऑलरेडी yes कर चुके हैं ना, जहां पे no होना चाहिए था, तो ये दादा ने ये सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं कि ये सारे के सारे yes ही होने चाहिए. So this is not a test. This is just a test for yourself to understand कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये करना जरूरी है. The third question or the third answer comes your way. When my child is sad or angry, I tell my child that I understand you. It is okay to be angry. It is okay to be sad. The fourth answer comes your way. When my child is sad or angry, I try to help my child explore the possibilities of what is making them sad or angry. हमें दबाना नहीं है उसका एंगर, हमें दबाना नहीं है उसकी सैडनेस, गुस्सा करके या दांत भींच के. हमें बताना है कि एक्सप्लोर इट, टेल मी कि व्हाट इज मेकिंग यू सैड, व्हाट इज मेकिंग यू एंग्री. फिफ्थ आंसर कम्स योर वे. But the most important thing is ask them what is making them sad, ask them what is making them angry. मन में आपको भी पता है कि आपका कोई बिहेवियर पैटर्न है जिसकी वजह से बच्चा गुस्सा हो गया है, बट उससे पूछिए
कि क्यों हो गुस्सा। कई बार क्या होता है, बच्चे को पता नहीं होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन है या वो गुस्सा है, या वो बच्चा सैड है या उसके रोने की इच्छा है। तो उससे पूछिए, आस्क देम टू लेबल द इमोशन, मेक देम लर्न हाउ टू लेबल देयर इमोशंस, differentiate between the emotions. Sixth answer comes your way. Children have the right to be angry. Children have the right to feel sad. Children have the right to feel all the emotions that you feel. बच्चे छोटे भले ही हैं, inexperienced भी हैं, आपसे less powerful भी हैं, but emotions wise तो same emotions हो सकते हैं जैसे आपके हैं, because they are watching you. So they have all the right to be angry. They have all the right to be sad. Next answer comes your way. Number 7. Children who are getting angry and sad. So now the most important thing is that when they are angry or sad, give them a hug. उनको ये मत बोलो कि सारा टाइम तुम ऐसे ही करती हो, सारा टाइम तुम ऐसे ही करते हो. Now is the time to let them stand for themselves. Let them own up their own things. Let them not be embarrassed of their emotions. क्योंकि अगर हम जितना उनको दबाएंगे, दे विल बी एम्बैरेस्ड कि गलत है एंग्री होना. मम्मी ने कहा था कि बदतमीज बच्चे एंग्री होते हैं, कि हमेशा रोंदू बच्चे सैड होते हैं. नो, लेट देम हैंडल देयर ओन इमोशंस विदाउट बीइंग एम्बैरेस्ड. लेट देम डू इट. लेट देम बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट व्हाटएवर देयर इमोशंस आर. दीज आर द 9 थिंग्स व्हिच दादा सेज कि ये तो होना ही चाहिए. ये सब बच्चों में गुस्सा आना चाहिए, सब बच्चों को सैड होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हम में है कि हम वो चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हैं बच्चों के साथ. सो हियर आई गो बैक टू माय फर्स्ट पार्ट ऑफ इमोशनल कोचिंग, पार्ट 1, वेयर जॉन गॉटमैन ही सेड दोस 5 गोल्डन रूल्स व्हिच आई विल रिपीट अगेन. ये देखिए, ये एक बहुत सुंदर सी चीज है. हम है ना बुक्स में पढ़ते हैं कि 5 स्टेप्स टू इजी इमोशनल कोचिंग, लेकिन आप देखिए कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग पहले भी करते थे. एंड ट्रस्ट मी, वी आर अ लॉट ऑफ हाईली फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स. मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी मदर इन लॉ को मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा. आई नेवर हर्ड हर रेज हर वॉइस, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग विच आई सी इन माई हस्बैंड. ही नेवर गेट्स एंग्री. In 30 years of my married life, I have never heard him raise his voice. I have never seen him angry, because that's what he got from his mother. So it is not, we need to learn from our elders. और इतने सारे लोगों को दादा ने पढ़ाया है, मैंने उनको इतने सालों में कभी गुस्से में नहीं देखा. हाँ, पढ़ाई के लिए उन्होंने फिर मुझे बोल दिया कि आज ये होमवर्क क्यों नहीं किया, बट वो जो गुस्से वाला गुस्सा होता है ना, गंदे अपशब्द बोलने वाला, वो मैंने उनको कभी नहीं देखा. वो ही इंसान ये सारे क्वेश्चंस बना सकता है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो और जिन्होंने ये सब चीजें नहीं की हो, एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स, और जिन्होंने कभी चिल्लाया नहीं. सो यू सी, नाउ आई विल रिपीट दोस 5 गोल्डन रूल्स विच वी हैव ऑलरेडी डन, but they have been written in books by John Gottman, and they are, the first one is that listen to your child. Most important is that जब बच्चा बोल रहा है तो उसे काटिए मत, उसकी पूरी बात सुनिए. सेकेंड इज दैट एम्पैथाइज विथ योर सूदिंग वर्ड्स एंड फिजिकल अफेक्शन. उसको प्यार कीजिए, जरूरत है तो हक कीजिए, एम्पैथाइज कीजिए. इट्स ओके टू बी सैड, यू नो, इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यू कैन हैव दो सॉफ्ट वर्ड्स. थर्ड गोल्डन रूल इज हेल्प देम टू लेबल देयर ओन फीलिंग्स, अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस. जरूरी नहीं है कि वो समझे कि उनको क्या हो रहा है. कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तो वहां पे टॉपिक बंद नहीं होना चाहिए. मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको क्या लग रहा है, पहले पूछो. मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग एंड हेल्प देम एक्सप्लोर एंड हेल्प देम लेबल इट आउट कि बेटा आपको सैड फीलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है. डोंट लीव इट कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है. उनको एक्चुअली नहीं पता है, तो we are supposed to make them learn. We are supposed to teach them कि what you are feeling, explore it. Fourth is now guiding them in regulating their feelings कि आपको ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है. Now at this point you have gained trust from your child. बच्चे को पता है आप उसके ऊपर चिल्लाने वाले नहीं हो, बच्चे को पता है आप उसकी सुन रहे हो, बच्चे को पता है माँ ने हक किया है, पापा ने हक किया है, तो आपने ट्रस्ट गेन कर लिया. द मोमेंट यू ट्रस्ट, टेक द ट्रस्ट ऑफ योर चाइल्ड, now you have a upper hand of setting limits. By
वेरी सिंपल थिंग्स, कि अगर उसको अभी के अभी खाने के टाइम चॉकलेट चाहिए तो फेयर इनफ, ठीक है तुम ये चॉकलेट खा लो, अभी खाना है अभी खा सकते हो, लेकिन ये वाला खाना भी खाना पड़ेगा। पर अगर आपने बोला नहीं चॉकलेट नहीं मिलेगी, फिनिश दिस फूड, नाउ व्हाट इज राइट, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? बच्चा अपने इमोशंस फीलिंग दबाएगा, आप स्ट्रांग हो, बच्चा मन मार के खाना खा लेगा, लेकिन मन तो उसका खट्टा हो गया। You can only set limits if you have gained that trust from the child, right? Last but not the least is teach your child problem solving skills. जब आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करना सीख रहे हो बच्चे के साथ, उसको भी एक्सप्लोर कराना सीख रहे हो, बच्चे को ये भी सिखा रहे हो कि इट इज ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड, इट इज ओके टू बी एंग्री, इट इज ओके टू बी सैड, तो बच्चा एम्बेरस नहीं होगा, कभी भी एम्बेरस नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, विच इज अ वेरी मस्ट थिंग फॉर एन इमोशनल कोच चाइल्ड इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। आप सारी जिंदगी बच्चे के साथ नहीं रहने वाले हो, बट वंस योर चाइल्ड इज इमोशनली स्ट्रांग बचपन में, दे कैन हैंडल देयर लाइव्स वेरी ब्यूटिफुली, वेरी इजिली। वेल, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। वी गो बैक टू दादा ASAP। दादा। हाँ जी। अच्छा मैडम, अभी जो हमें सुन रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, उन सबको मैं बोल दूं कि कुम्हार बन जाओ तो कैसा लगेगा? सच में कुम्हार क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। बड़ा बनाने क्या वाला। करता है? हाँ, क्या करता है? पहले कहीं और से मिट्टी लाता है, फिर उसको रोनता है, फिर पानी डालता है, फिर रोनता है, फिर पानी डालता है, फिर रोनता है। फिर क्या होता है? एक मिट्टी का सॉफ्ट गोला बन जाता है। अब ये सॉफ्ट गोले को क्या करता है? चाक, जिसको चाक बोलते हो ना, उर्दू में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है वो दादा। चाक को गोल गोल घुमाता है, मिट्टी का लोंदा ऊपर रख देता है, यूं हाथ डाल के वो जो चाहे शेप दे देता है, कुछ भी बना लेता है। आपने बताया था कि दादा हमें डांटते भी थे। यस, मैं कुम्हार था और अब भी हूं कुम्हार। क्यों कुम्हार हूं? कुम्हार का काम क्या होता है? जब वो पोट बनाता है ना, तो उसका एक हाथ मिट्टी के गोले के अंदर जाता है, वो शेप देता है, और शेप बिगड़ न जाए इसके लिए वो बाहर से उसको थपथपाता रहता है। तो मेरा डांटना, आपको डांटना या किसी और को डांटना इसी टाइप का होता था। मेरा हाथ सॉफ्टली आपको अंदर से सपोर्ट करता था, बट आपकी स्टडी न बिगड़े इसलिए बाहर से थपथपाना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। एग्जैक्टली दादा। तो जब आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हो ना, तो कुम्हार बनना ही पड़ेगा। ब्यूटिफुल। जो आपका मिट्टी का बॉल जो है, वो उसको पहले सॉफ्ट बनाओ, फिर जो चाहो शेप में आप डाल सकते हो। सबसे पहले तो मैं क्या बनाना चाहता हूं, मेरे बच्चे को या मेरे बच्चे के बच्चे को, ये जरूरी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे होम्योपैथी डॉक्टर नहीं बने क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, तो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की कि भाई तुम बनो, ये नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो करो। आज वो सफल है भी। And let me tell you, they both are very successful in their lives. हाँ, अब मेरा जो बड़ा पोता है ना, 10-12 साल का है, उसकी मॉम उसको वेकेशन में अदर एक्टिविटीज कराती है, म्यूजिक में ले जाती है। आज तबला में ले गई, एक हफ्ता हो गया, बच्चा बोलता है मुझे ये पसंद नहीं। हारमोनियम में ले गई, मुझे ये पसंद नहीं। स्केटिंग में ले गई, थोड़ा सा स्केटिंग छोड़ा, सीखा, छोड़ दिया। बॉक्सिंग में ले गई, थोड़ा सा बॉक्सिंग सीखा, छोड़ दिया। मैं देखता रहता हूँ। ये जमाना नहीं अपने बेटे और बहू को बोलने का, ये जमाना नहीं कि आप ये गलत कह रहे हो। शांति से देखते रहो, फिर जिस सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट है ना, वहीं पे उसको ले जाओ, वो उसमें नाम बनाएगा। आपने बोला था कि भाई देखो
देखो बच्चे क्या करता है, आप जो कहोगे ना, छोटे बच्चे की बात है, जो कहोगे वो शायद वो नहीं करेगा, बट जब वो आपको देखता है ना कि मेरी मॉम क्या करती है, मेरे पापा क्या करता है, मेरे पापा कैसे खाना खाता है, मॉम कैसे खाना खाती है, वो आराम से वो सीख लेगा। बट आप जब तक उसको डांट के बोलोगे ठीक ऐसे थोड़े खाना खाया जाता है, नहीं सीखेगा। आप आराम से बैठो, शांति से खाओ, वो टाइम पे मोबाइल को बंद कर दो, आपका बच्चा वही करेगा। अगर आप भी मोबाइल चालू रखते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि मेरा बच्चा खाने के वक्त भी मोबाइल नहीं छोड़ता, तो ये करेगा, आपको देख के करता है ना। बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है, आप बिगाड़ रहे हो उसको। नंबर 2, आप बच्चे को लव करो, उसकी हर इच्छा पूरी करो, बट एट ए टाइम नहीं। मैं मेरे दोनों बेटे को यही कहता हूँ, बच्चे ने डिमांड की ये ले दो, उसको बोल दो अभी मुझे प्रॉब्लम है, इनकम कम है, तेरी ये चीज आएगी, बट अभी के अभी नहीं। अभी के अभी वो लेके दे सकता है, बट वो बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको आदत हो जाएगी कि मैं वो जो चाहूं वो अभी के अभी मुझे मिलनी चाहिए। बच्चे को जीतना सिखाओ, बट साथ साथ में हार को भी डाइजेस्ट करना सिखाओ कि हर बार जीत नहीं होती, कभी हारना भी पड़ता है। ये बात है, तो बच्चे को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए माँ बाप को कुमार बनना पड़ेगा। कुमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Guys, anybody can please unmute and tell him कि कुम्हार को क्या बोलते हैं? पॉटर। हैरी पॉटर। Thank you, स्मिता। Thank you. हैरी पॉटर नहीं दादा। मतलब दादा ने भी हैरी पॉटर पढ़ा है। Yes, if anybody wants to unmute and say something on this topic, most welcome. So I guess we have a minute or so. Any questions? Kindly put your questions if you have any questions. ठीक है दादा, I think before concluding and before it finishes off, let me tell you that we are starting Dada's combination and will be teaching many homeopathy general combinations for different things like colic or dysentery or diarrhea or constipation. Many of such 20 plus 5 if we have time, that will be a gift from Dada. वो 5 उन्होंने हमसे भी छुपा के रखी हुई है फिलहाल. But we will be teaching 20 combinations, which is starting from 15th. So 15th will be an introduction session of Dada, Dr. Sonal and myself. साथ में इतना भी बता दो कि हम जो कॉम्बिनेशन बताएंगे ना, वो आप अपने घर पे प्रिपेयर कर सकते हो, एकदम बिना सिम्टम्स देखे वो कॉम्बिनेशन आप यूज